look doubtful. So let me call Mohammad Arman, who will tell you and our audience about self-confidence. Guys, am I audible? Am I Uh, audible and visible? yes, yes, yes. Thank you, Akriti, for inviting me. So, as we all know, today is World Suicide Prevention Day, and I am Mohammad Aman from Biotechnology branch. And today I will be going to give a presentation on lack of self-confidence. Before starting, I would like to express my gratitude towards Dr. Hina Chavda ma'am for giving us this opportunity to speak. And I would also like to thank our institution, National Institute of Technology, for providing us with this platform and for including value education in our curriculum. NIT Raipur is one of the very few institutions in India which includes value education in its curriculum. So we are thankful for that. So let's start our presentation. Where is your self-confidence? Analyzation and solution. Mark Twain has said that all you need in life is ignorance and confidence. Then success is sure. यहाँ पर मार्क ट्वेन का मतलब था ignorance towards the negative aspect of life and confidence of absolute kind. There are two types of confidence: absolute self-confidence and relative self-confidence. We will learn more about this further in this presentation. So moving on, the introductory part. I believe that lack of self-confidence is one of the key reasons of people going into depression and eventually committing suicides. They feel that they are not good enough and they are unable to fit into the society. They identify what is the social parameters and what is the definition of an ideal individual as per the society, and they try to fit their own personality into that parameters. And when they are unable to do that, they feel that they are losing self-confidence. So the fundamental issue involved here is that their self-confidence is based on the approval of the society. They feel that society need to approve their personality in order for them to survive. So when the mentality of the people around them changes, their own self-confidence varies. So broadly speaking, we can see that we can categorize self-confidence into two major categories. One is absolute self-confidence and another one is relative self-confidence. Relative self-confidence is when someone feels confident about himself or herself when he's already living his life as per the society, and therefore he or she feels a sense of approval. He feels approved by the society and therefore he has high self-confidence. Whereas absolute self-confidence is when one is confident through self-verification and self-analysis. A process of introspection is involved in this type of confidence. इसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो मान लीजिए कि आप यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्कूल्स इन योर लोकेलिटी, और अभी हम सब जेई का एग्जाम देकर आए हैं, तो आइए उसी का एग्जाम्पल लेते हैं. अज्यूम दैट इन दैट स्कूल most of the students have excelled in the JEE mains exam and you have just got satisfactory results. Now you are sad because you are unable to select the college of your choice and the branch of your choice. You're sad because you are not good enough. You think that you are not good enough. You're sad and you feel that your confidence is going down. Your self-confidence shatters just because the people around you have performed better than you. अब सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक you're studying in a school from a rural background where nobody has qualified JEE mains exam and you are the only one qualified. Now, will your self-confidence soar or not? ऐसा क्यों हुआ? What is the reason? कि बंदा वही, रैंक वही, मगर बैकग्राउंड के चेंज होने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग अलग हो गया. द रीजन इज यहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होके रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इसलिए बैकग्राउंड जब चेंज हुआ तो कॉन्फिडेंस वैरी होने लग गया. ये हमारे पास कंपैरिजन है. जैसा कि मैंने बताया कि रिलेटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस सोसाइटी के अप्रूवल पे डिपेंड करता है, whereas एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिपेंडेंट है सारे फैक्टर्स से. तो ये तो हो गई प्रॉब्लम वाली बात. अब सॉल्यूशन क्या है? पीयर प्रेशर को अगर हटाना है तो हमें एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर जनरेट करना होगा, इनकलकेट करना होगा. सो व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्टेप्स टू गेन एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस? लेट अस सी.
Firstly, I would suggest you all to, whenever you are feeling low in self confidence, you should bring out a paper and pen and jot down the points of achievements of your life. It need not be high achievements, it need not be very big achievements. It can even be small things. Make a list of all those things, all those achievements that you have done in your life, and put that list close by. And whenever you feel low on self confidence, bring out that list and go through it. You will surely feel differently. Now, the second point is think of the things you are good at, think of your strengths, and keep reminding yourself about your strengths. And when you are aware about your strengths, it will be easy to build a skill out of it and generate absolute self confidence. Set some goals. This is a very important point. You need to set some small goals and set a time duration. And when you will fulfill that goal, you will surely experience a boost in your absolute self confidence. Another point is talk yourself up. It will be very difficult to survive in this world if your brain is going through a negative commentary continuously. If your brain is going on and telling you that you're not good enough, you are not going to achieve greatness in this world, it will be very difficult for you to survive, and it will be very difficult to you to achieve absolute self confidence. So always talk yourself up. Always say that you are going to achieve, you are good enough for this world. The last point is get a hobby. It is necessary to get a hobby. It can be anything: photography, sports, basketball, knitting, cricket. It could be anything, but you must have a hobby, and it will be easier for you to make a skill out of it and boost your self confidence. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पर देखें तो मेरा एक दोस्त था. He was not a very tall heighted person, and all those tall people used to make fun of him for his height, and this obviously shattered his self confidence. He felt that he's not good enough for this world. तो मैंने उससे कहा कि यार अपने आप को इतना काबिल बना, इस लेवल तक पहुंचा, खुद पर भरोसा करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, एब्सोल्यूट सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, कि वही लोग, all those people who used to make fun of you, all those tall people, they will have to call you sir respectably, and they will have to bend to your knees to put a step stool beneath your foot when you stand on a podium and preside over a ceremony of all those tall people who used to make fun of you. आप समझ रहे हैं? क्योंकि people's parameters are liable to change. The actual question is, do you know who you are? And do you believe in your talent and self-worth? That's all from my side. Thank you. This is Muhammad Aman signing off. Thank you, man. I hope that it really helped Anushri as well as our audience to know more about self-confidence and help them to boost it. Nowadays, there's a lot of news regarding fights. What do you think, Akriti? What's the root cause? See, according to me, that root cause of the fights is misunderstandings and the lack of understanding between two people. Sometimes it's also expectations. कभी कभार हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से और कभी कभार कम. दोनों ही केसेस में सामने वाले को डिसरिस्पेक्टेड फील होता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एंड जैसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अल्टीमेटली इट लीड्स टू फाइट्स. तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्सपेक्टेशंस या को कैसे करें और कैसे एक दूसरे को समझे इन द टॉपिक ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंस कुमार who will tell us something about it. Yeah, first of all, I want to say good morning to all and also ma'am. So today I am going to telling something about expectation. Expectation is really non-realistic word. It means we want to get something from another. Yeah, but there is a very big question. Like you are expecting something from another and you not get your expectation is not fulfilling by that person, then what should we do? So I will be take here one example by which we can understand. So let मान लिया जाए कि कोई कॉलेज में दो पर्सन है जिसके बीच की फ्रेंडशिप काफी अच्छी है. सो पहले पर्सन का नाम आई विल बी टेक राम एंड अनदर पर्सन आई विल बी टेक श्याम. तो राम और श्याम के बीच की दोस्ती काफी अच्छी है.
तो एक समय ऐसी बात हुई कि मतलब राम को किसी बुक की आवश्यकता पड़ी जो कि श्याम के पास नहीं था। राम के पास नहीं था, तो राम ने सोचा कि क्या पता श्याम के पास हो। तो वह श्याम के पास गया और बोला, भाई कि मुझे बुक नहीं है मेरे पास और मैं लेना चाहता हूँ इस समय पर। तो श्याम ने बोला, ठीक है, तुम इस समय पर आना, मैं तुम्हें भी बुक दे दूंगा। बट फिर राम ने बट उस समय पर श्याम के पास गया, तो श्याम ने बोला कि नहीं भाई, मैं बुक मेरे पास नहीं है, मैं किसी और को दे दिया हूँ। So what will be think Ram here? Actually, Ram can think कि सच में यार उसने किसी को दे दिया, या वह झूठ बोल रहा है या देना नहीं चाहता। So there is a many things there. So here, which one is wrong? I means no one is wrong here, because Syam is also expecting from Ram and Ram is also expecting from Syam. I means राम ने जो राम श्याम से बुक लेना चाहता है बट श्याम नहीं दिया। इसका कारण बहुत सा हो सकता है कि राम समय पर लेता हो और बुक को वापस नहीं देता हो। यह भी कॉज हो सकता है, या राम तो बुक ले लेता बट फिर उसको मतलब किसी अच्छे तरीके से नहीं रखता, उसका इज्जत नहीं करता। यह भी कॉज हो सकता है, या राम किसी दूसरे व्यक्ति का हेल्प नहीं कर सकता। सो यहाँ पर व्हेन आई विल बी रियलाइज हु इज रॉन्ग, सो अकॉर्डिंग टू मी देयर नो वन इज रॉन्ग, देयर इज अ। बट हमारे अंदर यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात आती है कि हमें समझना चाहिए कि वह क्यों नहीं देना चाहता। क्या सच में उसको उस टाइम पर उसको भी वह पढ़ना था, या उसको किसी किसी को सच में वह बुक दे दिया, या वह नहीं देना चाहता। मतलब कि आई मीन आई वांट टू से हियर, right understanding is one of the also must things to there. And I will be also takes one another example. Let मान लिया जाए कि एक कोई बच्चा है जो कि अभी 8 क्लास या 7 8 क्लास में पढ़ाई कर रहा है, अपने पेरेंट्स से वो लैपटॉप या मोबाइल की मांग कर रहा है, जबकि उसके पेरेंट उसको मोबाइल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अभी इसको मोबाइल या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है। बट वो जो बच्चा है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स है जो मेरे एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करना चाहते हैं। बट हेयर इज ऑल्सो नो वन इज रॉन्ग, बिकॉज स्टूडेंट्स या सन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फैमिली। बट yeah, when you will be realize that my expectation not fulfill my parents, so it is a right understanding is also here, because when will be see that why it not expectations fulfill my expectation, so maybe it is good, because मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में ही भला ही सोचेंगे। वो नहीं सोचते हैं कि मतलब मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे कि जिससे मेरे प्रॉब्लम हो। तो अभी मेरे लिए आवश्यकता नहीं होगा, इसलिए मतलब वो नहीं देना चाहते हैं। So right understanding is one of the most important key. And I will be take another example, that is, let's in your rooms and in your house, on a particular place you are putting a flower, and that flower is not growing, not blooming. Then what will be you do? In your mind, one question will be arise that you want to change that flower. But I think that is not right way. If the flower is not growing at that particular place, then you should change the environment and put the flowers to the another environment, by which we can get the sunlight and he can clearly clearly blooming. I means I want to say realize the expectation by that example. That you are expecting something from another and your expectation is not fulfilling. So you cannot change people. You can change yourself. Because in the world, all people are not living to fulfill your expectation. So you can expect. It is not problem that you are expecting. You can expect, but it doesn't mean all will be fulfill your expectation. So you must expect from yourself, not much expect from another. If you want love, then you cannot get love. But when you will be give love, when you will be give love to another, then you can definitely will be got love. Also I want to say one thing, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अपने फैमिली में अगर दो भाई और बहन हो, तो माता पिता क्या करते हैं, छोटे से मतलब एक ही स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि मतलब सबका सोच एक ही हो? नहीं होता है। मतलब कि जब हमारे घर में ही ऐसा नहीं हो, हमारे फैमिली में ऐसा नहीं है कि सबका सोच समान हो, जबकि हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं, एक साथ ही स्कूल में जाते हैं, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि मेरे मतलब अनदर पर्सन मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सके। सो इट इज
non-realistic word, and we can avoid this. But yeah, I want to say we cannot much expect from another because no one can fulfill your expectations. So thank you to all and keeping the mind that thing. Thank. Thank you, Prince, and it really helped us. And I hope that we'll be able to clear the misunderstandings regarding which usually occur when we over expect or expect less from people. So now we know that there are, since we are taught in our value education class कि हर इंसान के जीवन में 4 levels होते हैं, individual, society, family and nature. और इन चारों लेवल्स पे उसको एक हार्मनी मेंटेन करनी होती है थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल सेल्फ, जो जितने भी इमोशंस और कॉन्शियस पार्ट होता है हमारा, उससे बनी होती है. एंड self is the self and body. And body is that physical body, that physical appearance that is here. तो इसमें एक इंसान को खुश रहने के लिए हार्मनी मेंटेन करनी है, which is through the right understanding. So this shows that how much important right understanding is. So in order to explain us more about the topic, I would like to call Nand Lal for his presentation. Kriti. Great afternoon, everyone. आज अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या बचाव दिवस के अवसर पर मैं नंदलाल आपको सही समझ के बारे में बताऊंगा. अब राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा. राइट अंडरस्टैंडिंग वो चीज है जो हमें अनहैप्पीनेस के स्थान पर हैप्पीनेस को प्राप्त करने में हेल्प करता है. जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लखन नेक्स्ट स्लाइड. हेलो, थैंक यू. जैसे कि हम लोग बोलते हैं अनहैप्पीनेस के स्थान पे हम लोग हैप्पीनेस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप लोग को. जैसे क्या नाम बोलते हैं, किसी का कार्यकाल कंप्लीट हो चुका है अर्थात रिटायरमेंट का समय है, तो रिटायरमेंट का समय एक दुख भरा अनुभव रहता है क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके साथ अगर अच्छा अटैचमेंट है तो ये दुख का बात होता है. किंतु हम लोग इसको सही समझ द्वारा हम लोग इसको हैप्पीनेस में बदल सकते हैं. अगर हम लोग उस व्यक्ति के स्थान पे रहकर सोचे कि अगर हम लोग का रिटायरमेंट होगा तो मैं अपने फैमिली को अच्छे से टाइम दे पाऊंगा, तो ऐसे मेरे फैमिली वाले खुशी होंगे और इससे मैं भी खुश होऊंगा और इससे जो भी मेरे साथ अटैचमेंट है मेरे मित्र वो भी खुश होंगे. तो इस प्रकार हम सोच सकते हैं कि खुश रह सकते हैं. और दूसरा बात इसमें तो एक खुशी ये मिलेगी कि परिवार के साथ वो रहेगा तो उसका अच्छा खुशी महसूस होगा. और दूसरा, कोई नया व्यक्ति उसके स्थान पर जब आएगा तो उसको एक रोजगार का अवसर मिलेगा और हम लोग को उससे इंटरेक्ट और कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा और हम लोग उसके अच्छे गुण को सीख सकते हैं. अगर उसमें हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा गुण रहता है तो हम उसके अच्छे गुण को सीख सकते हैं. इस प्रकार हम लोग सही समझ द्वारा अनहैप्पीनेस के स्थान पर हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. और राइट अंडरस्टैंडिंग केवल हम लोग अपने बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है. जैसे कि अगर भारत में बोला जाए माता पिता का आदर करना एक अच्छी बात है तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी सही होगा. भारत में तो सही है ही, वो ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छा है क्योंकि अगर कोई बेटा अपने माता पिता का आदर करता है तो ये अच्छी बात है और वो चीज कनाडा में भी सही होगी. अर्थात वो स्थिति के हिसाब से नहीं बदलेगा, वो हमेशा सही रहेगा. और एक दूसरी बात ये भी होती है कि जो भी ट्रू बात है वो जैसे पीएम के लिए जो सही है वो किसी गरीब व्यक्ति के लिए भी सही होगा, वो मेरे लिए भी सही होगा. अगर कोई चीज सीएम के लिए सही है तो वो चीज मैम के लिए भी सही होगा और आप लोग के लिए भी वो चीज सही होगा और हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा. ये स्थिति या कंडीशन के हिसाब से नहीं बदलेगा, हमेशा अगर सही है तो वो सही रहेगा, ये किसी व्यक्ति के होने पे नहीं बदलेगा. द फ्यूचर ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, इसमें रिलेशन विथ ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या बोलेंगे कहना चाहिए तो अगर दो व्यक्ति के बीच में अच्छी समझ है, अच्छी बॉन्डिंग है तो दोनों में आपसी
हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे। और अगर दोनों के बीच अच्छी समझ नहीं है आपस में तो हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और हमेशा दुख ही रहेगा उन लोग के बीच में। इसी प्रकार फिजिकल फैसिलिटी है, अगर अगर कोई वस्तु है जैसे कि मोबाइल ही है, अगर हम उसका अच्छे से केयर नहीं करेंगे, अगर जहाँ पा रहे हैं वहाँ पर फेंक दे रहे हैं, मतलब अच्छे से नहीं रख रहे हैं, तो कुछ समय आने के बाद वो मोबाइल भी खराब हो सकती है। और इस प्रकार अगर हम लोग आपसी समृद्धि अच्छा नहीं बनेगा, अगर किसी व्यक्ति का हम अच्छा करेंगे तभी वो हमारे साथ भी अच्छा करेगा। इस प्रकार हम लोग एक सही समझ के साथ कहना चाहिए तो मटेरियल थिंग्स के भी साथ एक सही समझ रख सकते हैं और इस प्रकार से राइट अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लखन, अब देखते हैं हम लोग के संबंध में, एक संबंध को अच्छा करने में सही समझ कितना योगदान देता है। अगर कोई व्यक्ति का यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, अगर एक दूसरे का इमोशन और वैल्यू इन लोग का अहमियत देते हैं, उसका अहमियत देंगे एक दूसरे का फीलिंग्स का, तभी एक दूसरे में आपस में खुशी रहेंगे। अगर एक दूसरे में अगर अच्छी समझ नहीं है तो दोनों व्यक्ति आपस में खुश नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट। यहाँ जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में अगर संबंध अच्छा, जैसे कि हम लोग दो भाई हैं और दो भाई, एक भाई के लिए अगर कभी पापा ने कोई मोबाइल ले दिया, अभी ऑनलाइन क्लास चलता है, तो अभी भैया के लिए वो भाई समझे कि क्या है, भैया का अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो उसका जरूरी है, इसलिए भैया ले दिया। जब उसका भी टाइम आएगा तो क्या नाम बोलते हैं, मोबाइल उसके लिए भी लिया जाएगा। इस प्रकार से दोनों भाई के बीच अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो भाई समझता है कि एक समय आने पर उसको भी ये चीज मिलेगा, उसके उसके बड़े भाई की जो फीलिंग्स है उसका अहमियत देगा, तो वो भी अहमियत देगा और उसकी फीलिंग का अच्छे से मूल्यांकन करेगा, तो एक दूसरे की करना चाहिए तो भावना, आकांक्षा है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट। और दूसरा होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी कि आत्म अन्वेषण करना। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को ढूंढ लेता है तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। हर व्यक्ति की अलग अलग चाहत होती है, किंतु उसे पाने में बहुत कठिनाई महसूस होता है और उसके पाने के लिए बहुत ही आपस में बहुत सारा कहना चाहिए तो चाहत होता है। जैसे किसी को कलेक्टर बनना है, किंतु वो प्लान नहीं कर पाते हैं वैसा कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या करें कि जिससे कि हम कलेक्टर बन सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझ के उसको अच्छे से प्लान करता है, और प्लान कर लेते हैं कुछ व्यक्ति लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं रियल लाइफ में। प्लान तो लगभग सभी लोग करते हैं लेकिन उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं बेसिक तरीका से। तो ये मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को भी अपना गोल अचीवमेंट करना चाहता है तो पहले अपने आप को समझे कि अपनी क्या आवश्यकता है, क्या बनना चाहता है और कैसे बन सकता है, इस बात में विचार करें, यानी अपने आप को समझे। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है तो उसे कोई भी गोल प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय लगेगा लेकिन वो प्राप्त कर ही लेगा। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्राकृतिक स्वीकृति देना पड़ता है, अर्थात उसको मतलब नेचर ही द्वारा जो अच्छे गुण होते हैं कुछ, वो हमें नेचुरली हम लोग गेन कर लेते हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग कुत्ता या कुछ सांप है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं कूच देते हैं या दबा देते हैं तो हमें काट काट देता है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ खराब करेंगे तो वो भी हम लोग के साथ खराब ही करेगा। जैसे आजकल मैं जानवरों के बारे में बात करूं तो हम लोग क्या है, जंगल की कटाई बहुत कर रहे हैं। जंगल की कटाई करने से उन लोग का घर बर्बाद हो जा रहा है। इसीलिए आजकल जो एलिफेंट है वो गांव में भी घूमने लगे हैं और टाइगर भी गांव में आने लग गए हैं। और आजकल टाइगरों की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन भालू दिख रहा है, वो भी खूंखार एकदम दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हम लोग
फैमिली में सामंजस्य कैसे बनाए। राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम लोग अपने फैमिली में भी सामंजस्य बना सकते हैं। अगर और फैमिली में सामंजस्य बनाने के लिए मेन आवश्यकता है कि जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन लोग के बीच में आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे को अच्छी से समझे। जैसे कोई स्टूडेंट का ही बात करते हैं, अभी कोई स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स क्या है लैपटॉप उसको दिला दिए, तो उसमें कोई छोटा भाई रहता है, अगर छोटा भाई का अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पापा उसके लिए क्यों ले दिए, मेरे लिए क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर इसी के जगह में उसके पास, अगर छोटा भाई के पास अच्छी समझ रहता, अच्छी सोच रहती, तो वो भी सोचता कि आज भैया का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और लैपटॉप अभी ज़रूरी है, इसलिए उसका ले दिए हैं। एक टाइम मेरा भी आएगा, जब मेरा क्लास चलेगा तो मेरे लिए भी ले देंगे, ये सब सोच के। और फैमिली में मुख्य तरह 3 रूप से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या तो ओवर अंडरस्टैंडिंग होती है, या तो लेस अंडरस्टैंडिंग, या तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओवर अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कहना चाहिए तो किसी के बारे में ज़्यादा ही समझ रखना, कि जैसे कि हम ही लोग के पेरेंट्स क्या होता है, हम लोग के बीच में हम लोग को ज़्यादा ही सोच लेते हैं कि ये कुछ जैसे टॉप कर ही लेगा, ऐसे सोच लेते हैं। तो और बच्चा किसी दिन अगर टॉप नहीं कर पाता है, तो वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स तो बोले थे, तो ऐसी स्थिति में सुसाइड की स्थिति में आ सकता है। लेकिन हम लोग अगर राइट अंडरस्टैंडिंग रखें परिवार में, अगर परिवार में अच्छी समझ है, तो इससे अपना परिवार काफ़ी अच्छा हो सकता है, इसलिए राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Nandalal. That was really insightful. Now, हम सब जानते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, पर जो स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं एज अ सब्जेक्ट, सिर्फ वही क्यों पढ़ें? मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है सबके सिलेबस में होना चाहिए, हम सबको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसी के बारे में हमको बताने आ रहे हैं अभी निखिल सिंह। Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Myself, Nikhil Singh, Technology Branch, NIT Raipur. I'm going to discuss about human behavior and attitude. Here, we will come to know what is human behavior, what is attitude, how attitude is formed, and how attitude and behavior can prevent suicidal thoughts. What is attitude? Attitude is a set of emotion and belief towards a particular object, person, things or event. किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमारी थिंकिंग या फीलिंग एटीट्यूड कहलाता है, या किसी के तरफ देखने के नजरिए को ही हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज बिहेवियर? किसी भी स्थिति या सिचुएशन में हम जिस तरह से रिएक्ट रेस्पॉन्ड करते हैं उसे ही हम बिहेवियर कहते हैं। हमारा किसी बिहेवियर को देखकर इंडिविजुअल के बारे में हम काफी कुछ जान सकते हैं। एटीट्यूड इज अ पर्सन्स माइंडसेट, whereas behavior is a person's actions or moves. Attitude is a mindset and behavior is a result of that mindset. Now ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतना लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एटीट्यूड आखिर फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है। There are many factors behind attitude formation. Some are the first factor for attitude formation is experience, अनुभव। अनुभव का हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हमें किसी कुत्ते ने काट लिया, हमारा कुत्ते के प्रति नजरिया, एटीट्यूड हमेशा के लिए बदल सकता है। सेकेंड फैक्टर इज सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स। इसमें हम ये सोचने लगते हैं कि सब यही कर रहे हैं तो हम भी यही करते हैं। अच्छा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, तो हम इसको अशुभ मानने लगते हैं। क्यों मानने लगते हैं? बिकॉज सोशल नॉर्म्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हम भी इसे मानने लगे हैं। The another factor responsible for attitude formation is our environment. समाज और परिवार हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमने क्या देखा, क्या सुना, हमारी कंडीशनिंग कैसी हुई, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे यदि कोई बच्चा बिगड़ गया, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि उसका थॉट्स ही वैसे बन गए हैं। अब थॉट्स क्यों बन गए हैं ऐसे? क्योंकि उसके सिस्टम में, हमारे सिस्टम से उसने यही सब सीखा है, उसका लर्निंग वाला पार्ट ही हो गया है। उसने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो देखा, उसने इंटरनल एनवायरनमेंट में कॉपी पेस्ट हो गया।
अब उसने जो गलत देखा और गलत कॉपी पेस्ट हो गया। इसमें मीडिया और सिनेमा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। नाउ अब ये चक्र सा बन जाता है। तो अब इसे हम ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने फैमिली और सोसाइटी पर ध्यान देना होगा। हमें फैमिली और सोसाइटी को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम में हमें वैल्यू एजुकेशन पर एम्फसाइज करना पड़ेगा, मोर एम्फसाइज ऑन वैल्यू एजुकेशन, जिससे हमें हर बच्चे को स्टार्टिंग से ही वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा तो उस बच्चे का लर्निंग वाला पार्ट ठीक हो जाएगा। जब लर्निंग पार्ट ठीक होगा तो उसका पॉजिटिव लर्न करेगा, तो पॉजिटिव लर्न करने से उसके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने से उसके एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, एंड एटीट्यूड विल गिव अ रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड बिहेवियर। नाउ उसका बिहेवियर भी सही हो जाएगा। सो एटीट्यूड, सो फॉर दिस education system, family and society is very important. Now, the most important thing, we will try to understand how attitude and behavior play a big role in our life and how they can contribute in suicide prevention. Nowadays, suicide के प्रमुख कारणों में से एक कारण है personal problem, that is relationship based problem. हम ऐसी कई बार न्यूज सुने होंगे कि कोई बहुत बड़ा नेम फेम वाला पर्सन या बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला पर्सन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते सुसाइड कर लेता है। नाउ एक कंफ्यूजन तो हमको स्टार्टिंग से ही क्लियर कर लेनी चाहिए। सुसाइडल थॉट इज नॉट ड्यू टू द फिजिकल वीकनेस। फिजिकल वीकनेस हैज नथिंग टू डू विद द सुसाइडल थॉट्स। Suicidal thoughts is due to the mental weakness. Now, attitude is also a mental related. So, attitude becomes very important for suicidal prevention. Now, prevention of suicidal thought at a personal level and relationship based problems with the help of attitude and behavior. हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम हमारे और किसी पर्सन के बीच में रॉन्ग इवेल्युएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो हमारा एटीट्यूड उस पर्सन के लिए गलत हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इससे हमारा बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, हमारा बिहेवियर गड़बड़ हो जाएगा उस पर्सन के लिए। नाउ बिहेवियर गड़बड़ होते ही हमारा रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। यदि ऐसे हमने कई लोगों के साथ कर दिया तो ये हमें स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। नाउ स्ट्रेस विल टेक अस टू द डिप्रेशन, और हम जानते हैं कि डिप्रेशन ही सुसाइड का पहला बीज है। डिप्रेशन इज स्टार्टिंग केस ऑफ द सुसाइड। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली, हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हमारे रिश्तों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करे। हमारे एटीट्यूड में राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग की पावर होनी चाहिए, जिससे हम सामने वालों को सही तरीके से जज कर पाए। हमें जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ बैठना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, उसकी भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए। हमको उसकी जगह अपने को रख कर भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि दिक्कत क्या होगा, क्योंकि बिहेवियर सुधारने का पहला स्टेप ही है बात करना। हमें अपने बिहेवियर एंड एटीट्यूड को ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप में गुड ह्यूमन वैल्यूज ऐड हो जाएं, बिकॉज हम जानते हैं कि नो रिलेशनशिप कैन सस्टेन विदाउट ह्यूमन वैल्यूज। सो ह्यूमन वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, respect, love and gratitude are very important in the relationship, which we can build through the good attitude and the behavior. What is trust? It is a surety of happiness and prosperity. विश्वास एक बहुत छोटा शब्द है, but a very big meaning in the relationship. Like हमने बहुत पुरानी कहावत सुन रखी है कि विश्वास पर ही पूरी दुनिया टिकती है। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे हाथ से कोई ग्लास छूट जाता है और टूट जाता है, तो हम कहेंगे ये तो गलती से टूट गया, और वो किसी दूसरे के हाथ से टूटता है, हम कहेंगे कि इसने जानबूझकर किया। यही है ट्रस्ट डेफिसिट। हमको इसको मेंटेन करना चाहिए। नाउ रेस्पेक्ट, सम्मान मींस राइट इवेल्युएशन। हमारे अंदर दूसरों के प्रति सम्मान होनी चाहिए, बिकॉज सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देता है। हमारे बिहेवियर में सम्मान देना होना चाहिए। लव इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड। इट इज नॉट अ सेंसेशन, इट इज अ फीलिंग। इट कनेक्ट्स द पीपल, इट बाउंड्स द पीपल। नाउ the human values that we should include in our gratitude and behavior should be gratitude. कृतज्ञता, हमारे रिलेशनशिप में कृतज्ञता बहुत जरूरी है। यदि पेरेंट्स का रिलेशनशिप है तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि इन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, हमें इनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नाउ इफ फैमिली और भाई बहन का रिलेशन है तो उन्होंने हमें जो हेल्प की उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे एटीट्यूड हेल्दी होंगे तो हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, and good behavior makes a relationship more stronger. Now, the self-confidence. Self-confidence is very important.
when we understanding ourselves, या जब हम अपने को समझने लगते हैं, सही तरीके से समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है. We should have absolute self confidence, जिसमें हम खुद को इवेल्युएट करके कॉन्फिडेंट हो पाए. सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें वर्क प्लेस प्रॉब्लम्स लाइक जॉब एंड बिजनेसेस में होने वाले डिप्रेशन से बचाता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें सक्सेसफुल बनने एज वेल एज अनसक्सेस को हैंडल करने में मार्ग दिखाता है. हमें इन सारे बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड को इस तरह इंक्लूड करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, जिससे हमारा माइंड असफलताओं पर कभी सुसाइडल थॉट की तरफ जाए ही ना, वो हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग पर फोकस करे. नाउ एट लास्ट we know that suicidal thought and attitude both are mental health issues, mental health related problems and mental health related issues. So for maintaining our mental health, we should include physical fitness and regular meditation in our daily routine. Like अरस्तु ने कहा है, a great thinker that अरस्तु, उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. So for maintaining our physical health, we should include regular exercises like running, walking, physical games, etc. For regular meditation, we should set regular goals and habits, because meditation maintains our basic chemical chemistry of our mind. At last, I want to sum up my views with the famous quote by Swami Vivekananda ji, that हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है. इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं. थैंक यू. दिस वाज ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच. वाओ निखिल, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी आपकी. थैंक यू. आकृति, डू यू ट्रस्ट मी? Yes, of course. बस ऐसे ही हम सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस सेम है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. Now, moving on, I would like to invite Sagar Tandi sir, who is our senior. Actually, he was a student of NIT Raipur and he passed in 2020. Now, he is currently working at Jindal Stainless Steel Limited, and it is the largest stainless steel producer in India. Welcome, sir. Please say a few words. Hi Anushri, am I audible? Yes, sir. Okay, so hello everyone. Thank you Anushri for such a warm introduction, and thank you Hina Chavda ma'am and the entire department of NIT Raipur. I'm glad that such type of events are now actually happening in NIT Raipur, because back into 2020 or 2019 or 2016, I was a 2016 to 2020 student. So back then when I was in NIT Raipur, there were few events, but I'm happy that these kind of events, like I'm constantly in touch with Hina Chavda ma'am, and I constantly take the updates, and I'm glad that such type of events are taking place, where students can speak up, they can address their problems, solutions, they can have solutions, and they can speak to seniors and other specialized persons. So it's going really very well. So kudos to the entire team. And I could listen to Nikhil. So Nikhil, if you can hear me, your presentation was very good. And Thank you, sir. Thank you, so your sir. Thank you so presentation much. was very good, and keep it up, and just go like this, yeah. Thank you, sir. And keep smiling, yeah. So, like I told you, back in 2020, we had problems, right? We always have problems. ऐसा नहीं होता है कि problems अभी आ गए. Problems beginning से ही हमारे life में होते हैं. But अभी जिस हम generation में रह रहे हैं, the best part is that कि लोग accept करने लगे, right? So the first thing that I want to start with is people take mental health issues as a taboo, but it's not a taboo, right? Like other diseases, जैसे हमको fever होता है, या फिर diabetes है, या फिर cancer है, और HIV है, और there are many other diseases, right? Some are fatal, some are acute ones, some are chronic ones.
सो जिस तरीके से हम उसको डायग्नोसिस करते हैं, हम उनके रूट कॉज तक जाते हैं, the technology, the medications, the therapies that we take to get out of that disease, I think similar way में हमको ये mental health के लिए भी apply करना चाहिए. I remember जब मेरे family friends या कोई जब उनको किसी mental health की ज़रूरत होती है, mental aid की ज़रूरत होती है, they are scared. There is this phobia in the society because we consider mental health, mental illness as taboo. But first of all, we need to eradicate this from our mind that mental health जो है एक normal health issues हो सकते हैं. आपके जो hormones है या फिर जो pigments होते हैं या जो भी chemicals होते हैं, जब उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत disbalance हो जाता है तो वो हमको कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स देते हैं, और उन ट्रिगर पॉइंट्स को समझना इज बेसिकली नोन एज क्योरिंग योर मेंटल हेल्थ. ठीक है. और आई ऑलवेज से कि माइंड जो है इट इज द मोस्ट पावरफुल एसेट दैट वी हैव, राइट? सो डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योर माइंड. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को कंट्रोल करने मत दीजिए, बल्कि अपने शरीर को आप अपने आप से, अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए. आप जैसा फील करना चाहते हैं आप वैसा फील कर सकते हो. अगर आपको खुश रहना है तो ये आपके ऊपर है, ये आपका एक पावर है दैट यू कैन बी हैप्पी. So, because we are talking about suicide prevention, and I have been, hearing about cases. Although I'm not in NIT Raipur now, I'm in Odisha right now, working like Anushri described. I'm working for a steel plant, Jindal Stainless. I got campus placement in 2020. एंड आप सभी को पता है कि प्लेसमेंट वाला सिनेरियो कितना इट इज़ वेरी ट्रबलसम भी होता है, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हेक्टिक, बट विद द हेल्प ऑफ कन्वीनर्स, टीचर्स लाइक हिना चावड़ा मैम एंड अदर सपोर्टर्स वो स्मूथ चला गया. सो टॉकिंग अबाउट द टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. हमारा टॉपिक है कि सुसाइड एंड इसके प्रिवेंशन, राइट? सो अनुश्री, प्लीज वेरीफाई इफ आई एम ऑडिबल. आई एम ऑडिबल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, getting back to the topic, सबसे पहले ये बताइए कि सुसाइड इंसान क्यों करता है? Why a person goes to this extreme extent? This is the extreme thing, right? Suicide is the extreme thing. Why does a person think of taking his life? When he feels that there is no solution to his problem. Only then a person goes for a step like this, which is never ever recommended, right? You should never think about this aspect. But let me tell you the reason. क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ को एक टैबू बना लिया. जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो हमारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलते हैं, राइट? जब हम इंडिया की जो सपोज हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, राइट, बहुत ग्रो कर रही है. अगर हम हर किसी से अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके सोशल मीडिया के ज़माने में, ऑब्वियसली वी हैव एक्सेस टू ऑल द पीपल. अगर हम कुछ लोगों से, एटलीस्ट 10 लोगों से भी अपने प्रॉब्लम अगर शेयर कर ले तो हमको 10 सोल्यूशन मिल जाएगी, राइट? बट क्योंकि ये टैबू है, बट वी आर ऑलवेज अंडर दिस प्रेशर कि हमको हैप्पी दिखना है, हमको खुश रहना है. हम कंपेयर करते हैं कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, यार वो तो इंस्टाग्राम फेसबुक में फोटोज डाल रहे हैं, वो तो घूमने जा रहे हैं, उसने लद्दाख गया है, ले गया है, एंड ही इज पोस्टिंग हिज पिक्चर, शी इज पोस्टिंग हर पिक्चर, हिज पिक्चर. तो ऑलवेज वी आर इन दिस कांस्टेंट थॉट कि सिर्फ हमारे लाइफ में ये चल रहा है. एंड अगर हम इस बात को अगर लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोग हमें जज करेंगे. देयर विल बी पीपल हु विल जज अस, हु विल पास कमेंट्स, एंड फर्दर इट विल क्रिएट नेगेटिव एनवायरनमेंट फॉर अस. यही डर है जिसके वजह से इंसान सुसाइड करता है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट एबल टू कन्वे हिज थॉट प्रॉपर्ली, राइट? एम आई करेक्ट, अनुश्री एंड आकृति? Sir. Yes, sir. Yes, Absolutely. yes, यस. जस्ट लेट मी नो जब मैं एक्सीड कर रहा हूँ किसी चीज को, टाइम वाइम जो भी, तो मुझे थोड़ा बता देना. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो तभी होता ये है कि हम जब किसी से बता नहीं पाते तब हम सुसाइड के बारे में सोचते हैं. जब हम उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते तो हम सुसाइड के बारे में पहुंचते हैं. तो आई थिंक जस्ट रिमूव दिस थिंग दैट इट इज अ टैबू फ्रॉम योर माइंड एंड गेट बैक टू द प्रॉब्लम रूट कॉज तक आप जाइए. ठीक है, उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए.
कभी कभी ये होता है that when we are in a trouble we are not able to think about solutions, but make sure कि आप concerned person counselors या therapist के पास जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और solution निकालें. There is no problem which has got no solution, right? Everything is possible because the word impossible itself says I am possible, right? तो मेरा यही पॉइंट है कि बातचीत कीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? अगर आप 10 लोगों को जानते हैं, 12 लोगों को जानते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप बात नहीं कर पा रहे, मेक श्योर आप टीचर्स के पास जाइए, बिकॉज मेरा पर्सनल अकाउंट ये है कि मेरे लाइफ में वट एवर प्रॉब्लम्स दैट आई फेस, आई कॉन्स्टेंटली आई एम ऑलवेज इन टच विथ हिना चावड़ा मैम, आई एम ऑलवेज इन टच विथ अदर टीचर्स. मैं उनके साथ टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, सारे चीज़ें शेयर करता हूँ. एंड अपने लाइफ में हमेशा कुछ लोगों को ऐसे रखने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कॉलीग्स हो गए या फिर टीचर्स हो गए, ऐसे कुछ लोगों को मेक श्योर करना कि आपके लाइफ में ऐसे हो जिनसे आप जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, राइट? सो दैट आप सॉल्यूशंस तक जाइए. और अगर आपको एक बार रहेगा कि नहीं 10 days या 20 days या मिनिमम 6 months या 3 months में मेरा ये प्रॉब्लम या जो भी इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ, इफ दैट कैन बी सॉल्व, अगर आपको एक बार वो अश्योरेंस आ जाएगा तो आप इसके बारे में कभी सोचेंगे, राइट? थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद द डाउन ट्रोडन पीपल. जो आपसे कम है उनसे आप अपने आप को देखिए कि आप कितने लकी हो, आप कितने सफिशिएंट हो, राइट? एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल सफिशिएंट टू टैकल द प्रॉब्लम्स, एंड हम जहां पे भी जो भी कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट, right? Always try to think like that. Do not compare yourself, see your growth, compare yourself with your motives, with your goals, right? That is the key ingredient I would like to say. So suicide prevention is very important. A lot of suicide cases, a lot of such cases are being heard, are being read in the newspapers, and it is really very sad to see the numbers are increasing day by day because of this fact that we have made this concept a taboo. So let's just relax, thoda chill kare, relax kare, and just talk. Akriti, you want to say something? No, sir. So I was completely agreeing to your point that you are saying Okay, that it yes, has been yeah. a taboo. Yeah, it is a taboo. That's why people are not willing to come out. That's why people are willing to talk about it, right? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार जज कर रहे हैं. And the सबसे important चीज, let me tell you that these social media sites, whether it is Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, these all have a feature कि आप nowadays what happens, earlier there was no like status update कर देते. They are in a movie, they will tell that I am in a movie with 5 other people. Facebook mein they will say I'm traveling from Mumbai to this place via this flight. They are always like Instagram mein they are like, oh, I am traveling to this place, my food blogs, to everything. They show the positive sides of it, and हमको नहीं पता होता है कि हम एक्चुअली वो खाना खा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली वो जगह गए हैं कि नहीं. हो सकता है फोटोशॉप करके कुछ कहीं और का खाना ले लिया फोटो और उसको डाल दिया कि आई एम ईटिंग दिस विद 10 more people. सो एक्चुअली ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हम बहुत गलत होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, डिस इंटरप्रेट करते हैं हम, और इन तरह के कारण हम काफ़ी सेल्फ डाउट में रहते हैं और हम लोग हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई. आई नो दिस, ये जनरेशन ही कुछ ऐसा है, बट हमको सिर्फ पॉजिटिव साइड्स देखना है, कैसे हम सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जो सोनू सूद सर कर रहे हैं, वो जो हेल्प, व्हाटएवर हेल्प ही इज डूइंग, ही इज बीन एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? सो हम उसको पॉजिटिवली कैसे कर सकते हैं? अभी हम कनेक्ट हो गए, इट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, राइट? सो वी आर एबल टू टॉक. अनुश्री, आकृति, निखिल, जो भी जिनको भी हम सुन पा रहे हैं या बोल पा रहे हैं, we are able to do it because of social media. So I request you all to always use the positive side of things, right? Okay, so now this was all about, this was about the ideal cases कि हम कैसे टैकल करें, हम कैसे करें, बट हमको रूट कॉज जाना है, राइट? हमको बिगिनिंग में ही चीज़ों को ख़त्म करनी. ये चीज़ें तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रॉब्लम्स आ गए, राइट? बट हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें? हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी सॉल्यूशन कैसे रहे? फॉर एग्जांपल, इफ आई फेस अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम, पर्सन ए हैज अ प्रॉब्लम, पर्सन बी हैज अ प्रॉब्लम, but person A might find the problem 80% severe, but person B might find the same problem
to be 10% severe or 5% severe. It varies person to person. क्यों? क्योंकि वो इंसान मेंटली उतना स्ट्रांग है, अपने आप को उसने बनाया है. कोई भी बाय बर्थ मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है, बट वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स, वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स, वी नीड टू हैव सर्टेन habits in our lifestyle, in the surrounding, in the daily chores, that हम उस पोजीशन पे रीच कर पाए. एंड कभी ये मत सोचना कि कोई भी इंसान को प्रॉब्लम नहीं होता है. आई स्पीक टू हिना चावड़ा मैम, आई स्पीक टू लॉट ऑफ अदर पीपल, और मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि मैम आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है कि नहीं, तो वो बोलते हैं हमारे लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम है, बट हमारा नजरिया अलग होता है, हम देखते हैं उसको अलग तरीके से. हम हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम प्रॉब्लम को कम देखते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. तो ऑलवेज हैव दैट अप्रोच कि आप सोल्यूशन की तरफ कैसे जा पाए. अभी बिकॉज हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोशल मीडिया की वजह से होते हैं. सो आई हैव सर्टेन सजेशंस फॉर यू जो आप रेगुलर लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अनुश्री, आकृति, प्लीज लेट मी नो अगर आप इन सब चीज़ों से मतलब लाइक यू आर एबल टू रिलेट दीज थिंग्स और नॉट. Yes, sure, sir. Completely. या सो कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने लाइफ में. बिकॉज आई एम वर्किंग इन अ प्लांट, तो हर दिन ऐसा होता है, शिफ्ट्स करना होता है, फिर देर इज प्रेशर, इमेंस प्रेशर फ्रॉम योर सीनियर की देर आर वर्क डेडलाइंस. तो कभी ऐसा लगता है यार स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था, राइट? तो स्कूल लाइफ मुझे बहुत याद आती है. मैं हिना चावड़ा मैम से आई एम ऑलवेज लाइक टेलिंग हर कि मैम स्कूल आना है, मिलना है आपसे, वो प्रॉब्लम्स अब छोटे लगते हैं, या फिर स्कूल लाइफ बहुत अच्छा होता है. बट यहाँ पे सॉरी, बट यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग होती, राइट? तो सॉरी, आई हैव अ बैड हेल्थ. ओके, सो कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, राइट? सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू योर बेड, just 5 minutes or 10 minutes before going to your bed, make sure that your screens are off. ठीक है? फोन को आपको टच नहीं करना है, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस ऑफ करना है, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करना है, राइट? और 10 मिनट पहले आप फोन को अलग रख दीजिए. यू डोंट हैव टू स्विच ऑफ योर फोन, जस्ट शट ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन so that you do not get messages, video calls और notifications. Emergency calls के लिए आप हमेशा available रहना, but always turn off your data, right? क्योंकि हम जब सोते हैं तो हम नेगेटिव मैसेजेस अगर या कुछ नोटिफिकेशन, कभी कभी ऐसा होता है सोने से पहले यार किसी का मैसेज आ गया और वो बहुत हमको हर्ट करता है, हम रात भर सो नहीं पाते. आई थिंक तो मेरे लिए मैंने ये सीखा है कि आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट पहले मेक श्योर that you turn off your data. ठीक है? This is the first thing. Second thing, there are, अगर आप ट्राई कर सकते हो, I know you are all students, आपके पास बहुत प्रेशर है, प्रिपरेशन करना होता है, बट अगर आपके पास टाइम है, second thing is that before dozing off, before sleeping, right, before going to bed, make sure your environment is very good. Either switch on a meditation music, मेडिटेशन, योग निद्राज होते हैं, मैं ट्राई करता हूँ योग निद्रा, बट रेगुलरली पॉसिबल नहीं होता है. बट सोने से पहले आप कर सकते हैं योग निद्रा. अगर आपको कुछ लिंक्स वगैरह चाहिए रहेगा तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, राइट? तो योग निद्रा आप कर सकते हो सोने से पहले, या कुछ मेडिटेशन म्यूजिक आप सुन सकते हो सोने से पहले, टू काम योर माइंड. जो आपके जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होते हैं आपके माइंड से जो जनरेट होते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को कोलैप्स करने या एक पर्टिकुलर लेवल पर एक काम कंपोज करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंपोज काम योर माइंड, यू कैन स्विच ऑन और लिसन टू एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, और यू कैन प्रैक्टिस और परफॉर्म योग निद्रा, राइट? ओके. सेकेंड थिंग इज दैट हफ्ते में एक बार, आई नो यू आर ऑल यूजिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू आर एक्सेसिंग ऑनलाइन क्लासेस, बट मेक श्योर कि हफ्ते में एक बार, जैसे हम फास्ट करते हैं ना, फूड नहीं खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, वैसी कोशिश करना कि कुछ टाइम हम टेक्नोलॉजी से भी फास्टिंग कर सकें, राइट? तीसरा चीज ये है कि ऑलवेज परस्यू योर हॉबी, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परस्यू योर हॉबी, वेदर इट इज ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, एंकरिंग. आजकल सोशल मीडिया में लोग मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं या टीचिंग क्लासेस दे रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. दिस विल ऑलवेज enhance your boost up your confidence
एंड इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि फिर हमको ट्रोल्स होते हैं या फिर कमेंट्स जो रहते हैं वो बुरे आते हैं, बट जस्ट गो अहेड विथ इट, राइट? उसको इतना मत सोचो, जस्ट इम्प्रूव योर टैलेंट। ठीक है, आपने जैसे आई रिमेम्बर, मैं अपने बारे में बोलूँ, जब मेरा प्लेसमेंट होने के बाद मुझे 1 साल तक कॉल नहीं आया था बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, एंड वी वर ऑल वेरी डिप्रेस्ड. So I used to make mandalas. One of my friends, she told me this, and mandala art, it is very famous nowadays in India. So mandala art, I used to make mandala art. So I painted around 70-80 mandala art. Sorry. So you can do that, right? आप हॉबी को परस्यू कीजिए. एंड थर्डली, ये तो हमारा रात की बात हो गई थी, बट सुबह कोशिश कीजिए कि आप अपना जो डे है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट करें, कुछ पॉजिटिव नोट में स्टार्ट कीजिए. आप अगर गॉड पे बिलीव करते हो या फिर आप वर्शिपर हो, तो आप यू कैन स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग विद अ प्रेयर और योगा, सूर्य नमस्कार. आई थिंक आपको दिन में 45 मिनट्स अपने आप को देना चाहिए. अगर आप 45 मिनट्स अपने आप को नहीं दे रहे हैं, देन यू हैव टू टेक आउट टाइम 30 to 45 मिनट्स, और आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए. मॉर्निंग रिचुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गेट अप अर्ली, राइट, एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, वेदर इट इज़ माइल्ड वॉकिंग, प्राणायाम, ब्रीदिंग पैटर्न्स, ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, एंड एंड योर डे विद अ रिवॉर्ड, लाइक आई टोल्ड यू, म्यूजिक, योगा, योग निद्रा एक्सेट्रा. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आई यूज्ड टू अटेंड योगा क्लासेस, राइट? तो योगा क्लासेस से मैंने कुछ चीज़ें सीखी है कि माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है अपने आप को, अपने माइंड को फिल करना, एम्प्टी नहीं रखना, फिल करना पॉजिटिविटीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर बॉयज़ या गर्ल्स जो प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं जिसपे थोड़ा सा स्वेट एंड फिजिकल स्ट्रेन यूज़ होता है, वो सारे चीज़ें आप रेगुलरली कीजिए. उससे क्या होता है, आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो जो छोटी सी चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ ऑब्स्टेकल बन जाती है, वो उससे रिमूव हो जाती है. मैंने ये प्रैक्टिस किया, आई कैन वाउच फॉर इट, राइट? So you must practice yoga, you must practice exercise, keep yourself healthy, balanced diet पे ध्यान दीजिए, जंक फूड थोड़ा reduce कर दीजिए. Like you have a cheat day, you can have a cheat day like Saturday, Sunday. I always have cheat days on Sundays, Saturdays. I go out and have my Sunday binge, right? So in that way you can have your Sunday binges or all of that. But reduce your intake, junk food intake, water consumptions अच्छा रखिए, mindfulness practice कीजिए, early bed पे जाइए, get up early, talk to people, make friends, right? Associate yourself with good people whom you can interact with, same vibe के लोगों के साथ बात कीजिए, right? और आप obviously you are all studying, so prepare for whatever things that you are going for. आप कौन सी ईयर में, अनुश्री? सर अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है. ओके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. आप लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल. सो या, बट एट द सेम टाइम अभी से अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करिए. आपके पास बहुत टाइम है, एम्पल टाइम है. आप लोग अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आपको किस तरफ जाना है, किस फील्ड में जाना है. कौन सा ब्रांच है आप लोगों का? सर बायोमेडिकल ब्रांच. ओके, बायोमेडिकल में यू हैव दोज न्यूरल नेटवर्क्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट? हाँ, And सो आप उस पे branch- फजी लॉजिक्स एंड ऑल आप पढ़ रहे हैं, वो उसका फ्यूचर में बहुत स्कोप है. आप फिगर आउट कीजिए कि आप अगर आपको ब्रांच में ही रहना है तो आप कौन से टेक्नोलॉजीज उसमें सीख सकते हैं. फर्स्ट ईयर से उन टेक्नोलॉजीज में फोकस कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए ऐसे चीज़ों में जो आपको पसंद आता है, राइट? या अगर आपको कुछ और करना है या फिर आपको आईटी सेक्टर में जाना है, तो कौन से स्किल्स आप हायर कर सकते हो, कौन से स्किल्स आप इम्बाइब कर सकते हो. फोकस ऑन दैट. ऑलवेज ट्राई टू इनहांस योर स्किल्स, इम्प्रूव योर स्किल्स. खाली टाइम मत दीजिए अपने आप को, राइट? खेलिए, अच्छा खाना खाइए, एंड देन ट्राई टू इनहांस योर स्किल्स, राइट? अभी से आप जानिए कि कौन से स्किल्स, कौन से मार्केट में हम, कौन से सेक्टर में हम, कौन से स्किल्स काम आते हैं. बायोमेडिकल में हम 4 साल के बाद, हाउ विल आई come up as a graduate, what skills I have to take up, what skills I have to learn, understand that. अगर आप कुछ और करना चाहते हैं, if you are interested in civil services or IT sector or other technologies, focus on that. Talk to your seniors, talk to your colleagues, sorry, not colleagues but your teachers,
and your placement conveners, placement जो भी placement में आपके coordinators हैं and all of that people. So make sure कि आप बहुत young mind हो, आप अपने आप को train कीजिए, और we are all the future of this generation, we are all the youths, right? So हमको इन सारे problems में अपने आप को trap नहीं करना है. We should not be trapped in all these problems, because when you move on in life, you back, जब आप मूव करके देखते हो तो आपको सारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगेंगे. आई एम टेलिंग यू. So practice mindfulness, practice talking to people, converse with people, your seniors, your teachers, and practice yoga, practice mindfulness, exercise, eat healthy, talk to people, pursue your hobby, and थोड़ा सा social media और internet से दूर रहिए, right? Talk to your friends. अभी आप online classes ले रहे हैं, I'm sure you are not able to meet each other, but make sure कि आप Sundays को, Saturdays को Zoom call पे थोड़ा interact करें. थोड़ा सा like एक officially, unofficially, you make sure that you are, you're constantly interacting with people. So just do that, and I think it will make you a better person in your life. And घर में भी मैं बोल रहा हूँ सारे boys को and girls को कि घर में भी try to help your parents. कुकिंग में हो सकता है, या फिर गार्डनिंग में हो गया, या फिर कुछ भी है. सो नेचर से भी जुड़े रहिए, नेचर से इंटरेक्ट करते रहिए, बिकॉज नेचर बहुत ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है नेचर से बहुत कुछ, राइट? एंड ऑलवेज बी लाइक अ वाटर, ऑलवेज बी लाइक अ वाटर, राइट? डोंट मेक योर सेल्फ स्टिफ, या फिर ईगो मत रखिए कि यार मैं तो NIT रायपुर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, मैंने JEE पार किया है, तो आई विल नॉट बी डूइंग दिस, और आई एम नॉट सपोज टू डू दिस, या टीचर ने ऐसा कैसा बोल दिया, या व्हाटएवर, राइट? फ्रेंड्स ने ऐसा कैसा बोल दिया, ये मत रखो. ऑलवेज बी एजाइल, बी फ्रेगाइल, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहिए. ऑलवेज एक लर्न करने का जो जज्बा होता है वो हमेशा रखिए. वाटर की तरह रखिए कि किसी भी वेसल में आप कन्वर्ट हो सके, और उसका शेप और साइज या जो भी है उसके वॉल्यूम को आप कैप्चर कर सके. ऑलवेज बी बी लाइक दैट. एंड या दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. एनी क्वेरीज, कोई अगर किसी को कुछ पूछना हो, वी कैन टेक अप लाइक 1 or 2 questions. Anushri, Akriti, you can coordinate and let me know. Yes, sir. So someone was asking about asking you about the placement system in our college. Placement system, it is a different thing, right? We are Yes, here to sir. talk about mental health and all Mental of that. health. Yeah. So placement, okay. The thing is that speak to your coordinators, whoever is your coordinator, convener, because I am like 2020 pass out, so I can talk about placements, right? But I can't talk about the current scenario, because your current placement coordinator and convener, they will be able to talk about the current situation. But अगर आपको extra कुछ जानना है, तो you can always reach out, you can ping me, you can WhatsApp me or mail me your queries related to placements, etc. But I am sure कि आपके बहुत अच्छे seniors हैं आपके contact में, I think 4th year 3rd year में जो है, you can reach out to them, you can reach out to the teachers, and obviously there are a lot of blogs available, right? आप थोड़े blogs पढ़िए, internet में there are a lot of data, lot of blogs, lot of courses, lot of other stuffs available on internet. So थोड़ा आप वहाँ पे भी कीजिए, and just invest some time in yourself, in your skills. So yeah, so we'll talk about placement some other time, but this is how much I think talk right now. Any other queries? You can write. Well presented, Sagar. Congratulations. Thank Actually, you, sir. you brought many important points Thank you, to thank our you. notice, our consideration also. Regarding placement, if you have any queries, Sagar told you correctly. Of course, Sagar being completed this journey can be a valuable source, of course. But otherwise, you can reach out to your placement conveners also. And Yes, if yes. you genuinely have some queries, you can send to me on my email or on my WhatsApp number, same number, which is available on institute website. And if you really need it, we can arrange a one-to-one interaction or interaction with our alumni who have gone through this journey and are successful. But believe me, it's no big deal. It's only to understand the process, strategize your preparation,
and prepare every day. It's many a times what happens, student become aware of skill requirements from different companies very late, and they start preparation late. Actually, the preparation should start as early as possible. So, and we are organizing some employability skills training program for you. Yesterday only, I think we had started the program with biomedical and biotechnology students final year. Will come to lower semesters also. We plan to impart training on employability skills to all the students of all the branches of all the semesters. So I advise you to attend those sessions also. And apart from that, if any help is required, you can always post it to your through your placement conveners to me. Give your inputs. If you feel that they are not responsive, you can also then mail to me also, message me also. So, but today's platform, Sagar rightly pointed out that it's to discuss actually reasons for stress that leads to this, you can say, unwanted situation. And when you are under depression or under tension on this thing, about that, if you have any query, then I think all of our speakers and Hina ma'am will be happy to take that. Yeah, you shoot questions, yeah. We are all your age and we'll understand your queries as well. So And if if you have and if you something to ask, and if you are hesitant because of my presence, I can leave, no problem. है ना? You be no, feel sir, free to it's ask not like questions. I'm sure it must not be like that. You can write. अगर आपको बोलने में कुछ issue है तो you can write to Anushri or Akriti and they'll take up your question. You can hide your identity. Anushri or Akriti don't reveal their identity, but just raise the questions if they have. So guys, you're requested कि if you have some queries, Hina ma'am is there, Sameer sir is there, so you can ask. I think there are no queries regarding this. Do they have? So I don't think anyone has any queries regarding this. Okay, No, sir. that's great. Okay, okay. Somebody's So- there. Somebody spoke right now. Yes, sir. कोई समस्या नहीं है. अच्छा ठीक है, that's great. That's happy to hear that you are all enjoying your life. और Yes. I'm sure and I'm happy कि आपके life में अभी कोई बहुत अच्छी बात है कि आप you know, you are leading your life positively and you are as such not facing any problems in life and you're able to tackle your situations on your own. So thank you Anushri, Akriti, thank you Sameer sir, thank you Hina ma'am for inviting me and and making me able to interact with all my juniors. So I hope it was fruitful and of any benefit to you. Thank you so much and see you sometimes. Thank you, sir, Thank you, for sir. these for your invaluable time. And the things you spoke were really relatable, like missing schools and thinking that those were our happy times. And that post regarding that when we are seeing, we are insecure about the things that we don't have, and we always see the negative side instead of seeing the positive side of social media. Yeah. And I अभी guess आप लोग स्कूल मिस कर रहे हो बिकॉज जस्ट आप कॉलेज में आए हो. जब Yes. ऑफिस में जाओगे तो यू विल मिस योर College कॉलेज. life. जब नेक्स्ट ऑफिस में जाओगे तो फर्स्ट ऑफिस याद करोगे बिकॉज प्रॉब्लम्स आर लाइक दैट ओनली, राइट. प्रॉब्लम्स हमको जो करंट प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा हैवी लगते हैं बट हमारा माइंड सेट. एक और चीज़ मैं लास्ट ही बोलना चाहता हूँ. सॉरी आई एम टेकिंग आई थिंक एक्सीडिंग द No, टाइम sir. बट No, लास्ट थिंग sir. आई वांट टू से is that there are two types of mindsets, right? One is growth mindset and the other one is barrier mindset. ठीक है, यू हैव टू फिगर आउट कि ग्रोथ माइंडसेट होने के क्या बेनिफिट्स है. ग्रोथ माइंडसेट जो पर्सन होता है वो डेवलप होता है. ग्रोथ माइंडसेट कोई बर्थ से नहीं आता बट इट इज डेवलप्ड बाय टाइम, राइट, with our learnings and with the process that we go through. So always try to have a growth mindset towards problems. See problems as opportunities to learn. See problems as opportunities to come out brighter. See problems to shine. ये भी हो सकता है उसका एस्पेक्ट, राइट. तो प्रॉब्लम्स को हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तरह देखिए. प्रॉब्लम से ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स एंड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट टुवर्ड्स प्रॉब्लम कि लास्ट प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा और उसको नेक्स्ट टाइम कैसे हम उसको वी कैन अप्लाई इट
imply it and make our lives better. So always try to have a growth mindset rather than having a fixed mindset. Okay, you can read books, read novels, read good books, right? Don't read bad, like all these the trendy novels that we find. ये सब चीजें पढ़ सकते हो. I'm not restricting you, but always try to choose good authors, good books, because good books के foundations बहुत strong होते हैं. Language भी आप उनसे सीखते हैं, as well as you learn life lessons also. So always try to go for good books, good content. अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम वो तो आप डिवोट करोगे टेक्नोलॉजी में, बट एट द सेम टाइम हमको बहुत सारी चीज़ें बुक से सीखने को मिलता है. जो हम रीड करते हैं वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाके ट्रैप होता है. तो ये भी एक अलग लाइक फंडा है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड. मैं उसमें आई डोंट वांट टू डाइव इनटू दैट बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम. बट मेक श्योर व्हाट एवर यू डू, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप करते हो, जो भी देखते हो, व्हाट एवर यू सी, थिंक, व्यू, राइट, इट गोज इन योर माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है. सो मेक श्योर यू हैव अ कंट्रोल ओवर व्हाट यू सी, वॉच, हियर, स्पीक. आप जो बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बोलते हैं. जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं यार ये मत खेलो, फायर से डरो, यहाँ से मत कूदो, ये नहीं 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 बोल के हम उसको कहीं ना कहीं वी मेक देम रियलाइज कि नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट. तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बोलते बोलते सुनते सुनते सोसाइटी में टैबू बन जाती है, चीज़ें टैबू की तरह आ जाती है. बट मेक श्योर कि यू हैव अ ब्रॉड माइंड सेट. एंड द लास्ट थिंग आई वॉन्ट टू से इज दैट अगर आपको पता चलता है कि कोई भी आपके आसपास लोग ऐसे हैं, फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स किसी के फेस से दिख जाता है, कभी बिहेवियर से दिखता है, कभी कभी नहीं दिख पाता है, राइट. बट आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो मेक श्योर यू स्पीक टू देम. डोंट लेट देम फील कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, बट एक हेल्पिंग हैंड फॉरवर्ड करो यार. हम लोग यार अगर सबको एक दूसरे को हेल्प करते रहे, सबको एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, एक पॉजिटिव अप्रोच रखे, तो आई थिंक चीज़ें बहुत things will become really very good. So make sure that you have a positive attitude towards yourself and others as well. Try to empathize with people. उनकी सिचुएशन में जाके देखिए, उनके शूज़ को आप try to be in their shoes and try to acknowledge, see things that what is good for you, what is good for others and how can you uplift others. हमेशा अपने आप के बारे में तो सोचना ही है, but always try to think कि आप दूसरों को कैसे uplift कर सकते हैं, उनको कैसे प्रॉब्लम से आप बचा सकते हो. because ये चीज़ याद रखना कि what you give to the universe comes back to you in multiple folds. ठीक है, तो आप अगर यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देंगे, ठीक है, तो यू विल गेट बैक द सेम पॉजिटिविटी इन मल्टीपल अमाउंट. So always have this funda in your mind. Yeah, that's all from my side. So thank you, sir, again for enlightening us with this topic and telling us that we should now get rid of this taboo and speak about it. And moreover, that sir has also told us that the social media impact. So many a times we are suffering under the peer pressure. We are in a one group and a specific kind of group, and people there are at a certain level, and we try to match their level. So that pressure is always upon us, and we should stop thinking that we are not good enough. Should have self-confidence, as the presenters before have already told us that how self-confidence is important. So it is really important for us to be ourselves. And moreover, sir, the tips, I hope that the tips and the ideas you have advised us to entertain in our lives and include in our lives would be used by all our audiences here. And it was really appreciable of you that how you painted 78 mandala arts while you were waiting for that Some days appointment. I'll show them on, I'll post them on social media. I did not post them on social media because social media is all about, right, good stuff, all the goody yes. stuffs. Some days Yes. we'll see that also. Oh yes. गुड आफ्टरनून Surely. सागर. Hi ma'am, good afternoon. हाँ, कैसे हो? मैं आपको बहुत दिन बाद देख पा रहा हूँ ऐसे लाइव. बात तो हमारी रोज होती है, बट ऐसे देख आपको बहुत दिन बाद देख रहा हूँ. चलो, मैम मैं थैंक ठीक यू. हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आए थैंक यू और मैम. अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया आपने. और काफी मैंने आपकी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने फोन लगाया और आप तुरंत आ गए, इसके लिए धन्यवाद. मैम NIT रायपुर के लिए हमेशा कोई तैयारी नहीं रहेगी, बट फिर भी आ जाएंगे NIT रायपुर के लिए. हाँ, तो आगे भी आपको बिल्कुल याद करेंगे. ऐसे प्रोग्राम तो होते रहेंगे यहाँ, है ना. और आपकी Sure, फ्रेंड ma'am, sure. जो है उनका आकृति वो कल प्रेजेंट करूंगी कह रही थी. आज उसकी अमृता, क्लासेस है. अमृता, हाँ. अमृता, Okay. हाँ, वो कल Okay. प्रेजेंट करेंगी.
है ना। और आज हम लोगों ने रखा तो 2 बजे तक का था, क्योंकि हमको ये था कि नेटवर्क इशू हो सकता है। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन हो गया है। और हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमारे NIT रायपुर से डॉक्टर समीर वाजपेयी सर, हेड करियर डेवलपमेंट और प्रोफेसर सिविल इंजीनियर, वो शुरू से अंत तक हमारी पूरी बात को सुन रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पूरा धैर्यपूर्वक समय दिया और सबको सुना। और मैं चाहूंगी कि वो एक फीडबैक भी दें, बच्चों को भी अप्रिशिएट भी करें। और मेरी ओर से तो यही कहना है कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, सभी जो है आप लोगों का भी। लेकिन हमारे पास जो टाइम और ड्यूरेशन और टाइम के हिसाब से हमने कुछ लोगों को ही हम बोल पाए आज प्रेजेंटेशन देने के लिए। और काफी कम तैयारी में स्टूडेंट्स ने भी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतना अच्छा उन लोगों ने प्रेजेंटेशन वो दे पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन। तो सर जो है वो भी एक फीडबैक दें, बच्चों का जो आज का प्रेजेंटेशन था कैसा था, और कल का प्रोग्राम क्या है वो अनुश्री और आकृति आप सबको बताएंगे। सर समीर सर, आपका हाँ। धन्यवाद। आप कुछ बताइए कैसा रहा। नहीं, ये सेशन बहुत इम्प्रेसिव था, बहुत अच्छा था। और जो प्रेजेंटर थे उनके प्रेजेंटेशन जो थे पावर पॉइंट, वो तो बहुत अच्छे थे ही, साथ में जो उन्होंने बातें रखी वो भी बहुत प्रभावित करने वाली थी। तो मुझको लगता है खासकर ये ग्रुप जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये बच्चे जब बाहर जाएंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में जाएंगे, है ना, तो एक अपने आप की पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और इनको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि ये दूसरों को गाइड कर पाएंगे, दूसरों को रास्ता दिखा पाएंगे, और अपने साथियों को, अपने सहकर्मियों को। तो ये बड़ी बात उभर के आई। और आकृति और अनुश्री ने बहुत अच्छी तरह से पूरा जो कार्यक्रम है उसका संचालन बहुत अच्छी तरह से किया। इन्होंने जो साथ में इनपुट्स दिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बात रखी। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि इस तरह के कार्यक्रम और आपस में चर्चाएं होनी चाहिए, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम लोग की उपस्थिति होनी भी नहीं चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो भी है अपनी बात खुल के रख सके, आपस में शेयर कर सके। और आप में वो क्षमता है, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रोफेसर आपको हेल्प कर पाएगा ऐसा भी नहीं है। तो हिना जी, आपको भी बधाई, आपने ये जो दिन था इसका सार्थक आपने उपयोग करवाया हम सबसे। और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और हर समस्या एक अवसर है, चाहे वो निजी जीवन में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें हो, है ना। समस्या को अपॉर्चुनिटी के रूप में, अवसर के रूप में देखना शुरू करें, और अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे, देखिए एकदम से किसी की क्षमता नहीं बढ़ती, लेकिन हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास, थोड़ा थोड़ा काम अपने ऊपर करते रहेंगे, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद आप बिल्कुल आपकी क्षमताएं बहुत बड़ी हुई पाएंगी। तो आप सबकी क्षमताएं लगातार आप बढ़ाएं, हर दिन बढ़ाएं, हर क्षण बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबको पुनः एक बार बधाई और धन्यवाद मुझको भागीदार बनाने के लिए इस सुंदर सेशन का। जी सर, इसमें इस तरह से अगर कोई सुनते हैं शुरू से आखिरी तक, कोई सीनियर फैकल्टी या जो भी डीन है आप जैसे, तो बच्चे भी मोटिवेट होते हैं कि चलो हमको सुना, क्योंकि मैं तो सुनते रहती हूँ इन सबको, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने सुना तो इससे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। और भी फैकल्टीज आ पाते हैं, शायद वो सभी व्यस्त हैं, तो इस तरह से सबकी उपस्थिति में बच्चों का उत्साह बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है कि वो संकोच करते हैं, वो बड़े स्वतंत्र मिजाज के साथ मेरे साथ क्लास में रहते हैं, खुलकर अपनी चर्चाएं करती हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर इस तरह से बाकी सब ज्वाइन करेंगे तो भी वो बच्चे जो हैं वो खुलकर अपनी बात को रख पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक पूरा समय 2 घंटा तक आप रहे। और सान्याल सर भी आए थे, वो अभी ऑन द वे हैं, अभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भी समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुश्री, आकृति, आप कल क्या क्या टॉपिक पे होने वाला है और उसके बारे में आप बताइए, कल के बारे में, और फिर अपन इसको कंप्लीट करेंगे। यस मैम।
Tomorrow we will resume our session at 11 a.m. and we'll discuss topics like purpose of right education and peer pressure, then addiction, topics like these that are also very important. Yes, Akriti? Alcohol, that prevention and Yes. addiction to alcohol and drugs. Temporary and continued happiness, I think. Yes, ma'am. And SAGE, group presentation. And who am I is also. हाँ, who am I? तो इस तरह से कल भी 5-6 स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन है, मेरे ख्याल से वो भी 12 बजे तक हो जाएगा, है ना? तो सबकी प्रस्तुति और भी लोग जो हैं वो अगर कल जुड़ना चाहेंगे तो उनको भी हम लोग अपना साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है? ठीक है अनुश्री, आकृति, आपको और कुछ कंक्लूड करना है आज की प्रेजेंटेशन का? ठीक है, मेरी ओर से आप सबके लिए यही क्लास में भी कहती हूँ, आज फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि जैसे हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे के लिए हम बिना संकोच किए हम सभी को बताते हैं घर में और कहीं पर भी कि मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हम सोचते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं और हम बताते हैं कि मेरे सिर में दर्द है या मुझे फीवर है या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारियां हैं, तो छुपाते नहीं हैं, हम बताते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारे मन में अगर कोई प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है, या अंदर में बहुत ज्यादा जेलसी है या एंगर है ना, या पीयर प्रेशर है, या कोई भी तरह के हमारे जो मेंटल इश्यूज है हमारे अंदर में, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग छुपाते हैं इन चीजों को, हम शेयर नहीं करते किसी से, अपने पेरेंट्स को हम बता नहीं पाते हैं, अपन इसको किसी और को हम बोल नहीं पाते हैं और इन चीजों को हम छुपाते हैं। केवल स्टूडेंट की बात नहीं है, ये बड़ों के बीच में भी हम देखते हैं कि इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको वो किसी को नहीं बता पाते हैं। तो ये जो सोसाइटी का जो पूरा एक सिस्टम है ऐसा बना हुआ, जिसमें जिसको हम अजम्पशन मान्यताएं कहेंगे, एक फियर है, एक डर है, मान्यता है हमारा कि माने लोग क्या कहेंगे, उसके कारण भी लोग जो है अपने बारे में बताते नहीं है, और इस तरह की प्रॉब्लम को छुपाने से ही ये धीरे धीरे आपका स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है और फिर उसके बाद आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर कह रहे हैं। हमारे केमिकल मैसेंजर्स गड़बड़ हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर में प्रॉब्लम बढ़ जाती है और फिर वो मेंटल डिसऑर्डर के रूप में सुसाइडल थॉट्स और रॉन्ग वे हमारे सामने आ जाता है कि हम एडिक्शन की ओर चले जाते हैं या हम आत्महत्या का प्रयास करते हैं, है ना, या हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, या हमारा करंट जो समय है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे अभी जॉब करना है, वो मेरा ब्रेक हो जाता है। तो कारण ये है कि अगर जैसे यदि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, तो अगर मेरे मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है ना। तो जिस तरह से बॉडी में प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमारे अपने हैं फैमिली पेरेंट्स, अगर वहां से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम एक्सपर्ट जो हम कह रहे हैं साइकेट्रिक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम जरूर मिले, हम उसके लिए कोई संकोच ना करें, हम अपने मन में कोई मिथ भ्रम बना के ना रखें कि क्या सोचेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम मेरी है। और अगर हम इस प्रॉब्लम से, देखो एक चीज हम सबको पता है कि हमारे घर में कोई भी चीज अगर खराब होती है तो वो मैं नहीं बना पाता हूँ, ऐसी रेफ्रिजरेटर कोई भी चीज खराब हो रही है तो कोई इलेक्ट्रिशियन आके रिपेयर मैन आके बनाएगा। मेरी गाड़ी मोबाइल खराब होता है तो उसे भी कोई बनाने वाला है, मेरे कपड़े भी खराब होते हैं फटते हैं तो उसको भी बनाने वाला कोई है, मेरे जूते चप्पल या मेरे बाल खराब होते हैं उसको भी कोई ठीक करने वाला है। तो हर जगह देखेंगे कि हमारी हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए व्यवस्था है ना। तो बॉडी के भी प्रॉब्लम के लिए व्यवस्था है तो मन के लिए भी तो है ना। तो हम लोग यही गलती करते कि सारे प्रॉब्लम के लिए हम बाहर जाते हैं, हम रिपेयरमैन को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, या कार खराब है या बाइक खराब है उनके पास भी जाते हैं, कंप्यूटर खराब है, मोबाइल खराब है, हमारी जो भी चीजें खराब होती है उसको बनवाने के लिए जरूर जाते हैं, बॉडी के लिए भी जाते हैं। लेकिन मन दुखी है, मेरा मन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे वो नहीं समझता है ना, मेरा उनके साथ नहीं बन रहा है, हमारे आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे जलता है, चिढ़ता है,
वो जानबूझकर मुझे दुख दे रहा है ना। तो मेरे अंदर में जो प्रॉब्लम चल रही है मेरे अंदर में, है ना, ये एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम को हम अकेले नहीं कर सकते ठीक। अगर मेरे बॉडी में प्रॉब्लम है, मैं अकेले ठीक नहीं कर सकता हूँ, मुझे फैमिली मेंबर को बताना होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। ठीक उसी तरह से मेरा मन अगर प्रॉब्लम में है तो उसके लिए भी रास्ते हैं, हम उसके लिए हम बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको आने की जरूरत है और इसके लिए अभी ये पूरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। तो जो हम एजुकेशन सिस्टम को हम जो देखते हैं तो अब हमको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है, तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट के लिए है। क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं हम एजुकेशन के नाम पर, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या पूरा सिस्टम में फैसिलिटीज डेवलप हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे माइंड का डेवलपमेंट वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है। इसीलिए हम एजुकेशन सिस्टम में इस बात को करते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस डेवलप हो पाए। जैसे क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि एनिमल कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, तो ये एजुकेशन सिस्टम का पर्पस ही है कि हमारे अंदर का जो, अगर मेरे अंदर एनिमल कॉन्शियसनेस है ज्यादा तो वो मैं ठीक कर पाऊं और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में मैं ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए मेरा। तो उसके लिए जो है हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए भी ऐसी कोई क्लास हो जो ठीक हो पाए। तो ये जो निगेटिव थिंकिंग हम बोलते हैं वो क्या है, यही है कि मेरे अंदर में जो मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मैंने जो देखा, मैंने परिवार में जो देखा, मैंने सोसाइटी में जो देखा, मैंने सिस्टम में जो देखा, कहीं ना कहीं उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है या मेरे अंदर के अपने कुछ संस्कार हैं, तो इसके आधार पर मेरा बिहेवियर होता है ना। तो जो एटीट्यूड और बिहेवियर पे जो प्रेजेंटेशन रखा उसमें भी यही बात उन्होंने क्लियर कही कि हमारे अंदर में बाहर से जो आ रहा है वही फिर बाहर जा रहा है। तो इसलिए अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक रहेगा तो पर्सन ठीक होंगे तो वो फैमिली ठीक होगी तो सोसाइटी, और सोसाइटी से पूरा सिस्टम। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक होने की जरूरत है। ठीक होने की जरूरत है का मतलब उसकी सिलेबस ऐसा हो, ऐसी स्टडी हो वहां पर जिससे कि हमारा प्रोफेशनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल दोनों डेवलप हो। अभी केवल प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन है तो वहां पर हमको जरूरत है कि इंटरपर्सनल स्किल भी ऐड हो। अभी हम लोग केवल फैसिलिटीज से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, जबकि हमको 3 चीजों की स्टडी करनी है। एक रिलेशन, मेरी फैमिली के साथ रिलेशन, मेरे साथ रिलेशन। दूसरा समझ, अंडरस्टैंडिंग रहेगी मेरे अंदर तो ही मैं सेल्फ स्टडी कर पाऊंगा, मेरे अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ही मैं फैमिली को समझ पाऊंगा। तो मेरे पास जो है राइट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट इवेल्युएशन करने का ताकत हो मेरे अंदर में, कैपेसिटी हो मेरे अंदर में, और मेरा एक हेल्दी गुड रिलेशनशिप हो। ये जो 2 वाला जो पार्ट है ये मिसिंग है एजुकेशन में। तो ये दोनों हेल्दी हो पाए, मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, मेरे रिलेशन हेल्दी हो पाए, ये भी स्टडी की जरूरत है, जिसको हम ये मूल्य शिक्षा क्लास के माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाकी प्रोफेशनल स्किल आपका जो जॉब प्लेसमेंट और फिर उससे मनी और मनी से फैसिलिटीज, इसका सिस्टम में अभी है, लेकिन मेरा मेंटल डेवलपमेंट हो पाए, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, मेरे साथ, मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, या मैं जहाँ जॉब करता हूँ उनके साथ, सबके साथ मेरा एक गुड हेल्दी रिलेशनशिप हो पाए, ये वाला जो एड्रेस जो है वो हमको स्कूल कॉलेज में नहीं मिल पाता है। कहीं कहीं पर मूल्य शिक्षा की इस तरह की क्लास हो रही है, वहाँ पे एक बातचीत होती है, लेकिन इसको केवल इतने से नहीं होगा, इसको सभी जगह स्कूल कॉलेज में लाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है एजुकेशन सिस्टम पर कल है इसका प्रेजेंटेशन, और बहुत अच्छे से ये भी मैं जो कह रही हूँ वो सारी बात कवर होंगी उसमें, और अच्छे से ये प्रेजेंटेशन कल दिया जाएगा। तो आज जितने लोग शामिल थे वो सब भी अगर कल सुनेंगे तो एजुकेशन सिस्टम पर भी कल बात होगी, टेम्पररी कंटिन्यू हैप्पीनेस पर भी बात होगी, और भी काफी सारे मुद्दे हैं, काफी सारी बातें हैं, है ना। इस तरह के जो वेबिनार है मैं तो चाहती हूँ कि हर महीने 1-2 दिन का होना चाहिए। इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर क्लास से कुछ सीख रहे हैं तो वो अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि मैं समझ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप, जैसे अभी सागर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, तो सागर भी इसी चीज का एक फल परिणाम है कि उन्होंने इस क्लास को अच्छे से अटेंड किया, वो मेरे संपर्क में रहा, और आगे वो जहां पर भी जॉब कर रहा है वो एक बैलेंस
करके वो चल पा रहा है। जहां वो अनबैलेंस होता था, मेरे से बात कर लेता था, तो इस तरह से आज वो और किसी को मोटिवेट करने के योग्य हो गया है। तो जहां भी वो जॉब करेगा, जहां भी वो रहेगा, अपने फ्रेंड्स, अपने सराउंडिंग में जो भी है, उसको भी वो अच्छी बात दे पाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि इस क्लास के माध्यम से सभी स्टूडेंट के बीच में ऐसा एक प्लेटफॉर्म इस क्लास के माध्यम से क्रिएट हो, जिससे कि सभी जो क्लास में हम लोग करते ही हैं, ये हम सब जानते हैं कि जो भी मैंने पढ़ाया है उसको आप सब प्रेजेंटेशन तैयार करते हो और मैं प्रेजेंटेशन को सुनती हूँ। तो यही प्रेजेंटेशन अगर आप सबको सभी सुनते हैं कॉलेज में, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसकी और अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ये आगे फ्यूचर में काम आएगा, है ना। तो ये भी इस क्लास की सफलता होगी अगर इस तरह से हर साल जो अगर कम से कम 10-20 भी अगर ऐसे खड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मैं तो बार-बार क्लास में कहती भी हूँ कि आपको भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, आपको भी मोटिवेट करना है ना? तो और आपके अंदर में वो सारी क्वालिटियाँ हैं। हम तो केवल आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देते हैं कि आप अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानिए, उस अपने अंदर की अच्छी खासियत को पहचानिए और उसको बाहर निकालिए। तो ये क्लास एक ये माध्यम भी है कि आपके अंदर की सही समझ को भी इम्प्रूव कर पाए और एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे पाए कि आप अपने आप को खुलकर बाहर व्यक्त कर पाए। तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आप तो प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, रहेंगे तो ठीक कर लेंगे और दूसरों को भी आप अच्छी गाइडलाइन दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है और अगर सारे स्कूल कॉलेज में, सभी कॉलेज में अगर इस तरह की क्लासेस होती है तो ये बेनिफिट धीरे-धीरे सोसाइटी में फैलेगा। तो इस तरह से जो है हाँ, और एक बात ये आगे अक्टूबर में भी 10 अक्टूबर जो है हेल्थ डे है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। उस दिन भी मेरा प्रयास रहेगा कि 2 दिन का ऐसा फिर हम वेबिनार कराएंगे, है ना। तो कल तक के लिए कल फिर आए, आप सभी फिर अटेंड करें और मैं समीर वाजपेयी सर से फिर कहूंगी कि कल फिर आए, अटेंड करें और बाकी और भी लोगों से आज जो मेरी बात हुई थी उनसे आज मैं फिर प्रयास करूंगी कि वो कल ज्वाइन करें बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है? अनुश्री, आकृति? नो मैम। नो मैम। है ना, ठीक है। तो कल हम लोग कल फिर सब मिलेंगे हम लोग इस तरह से 11 से 2 बजे तक का है, लेकिन 2 घंटे का रहेगा, 11 से 1 बजे तक में हो जाएगा ये प्रोग्राम हमारा, है ना। तो कल तक के लिए इस प्रोग्राम को हम लोग क्लोज करते हैं और कल हम फिर मिलेंगे सब एक साथ में। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मैम, थैंक यू सागर सर। Thank you. थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप Thank सबका you, sir. धन्यवाद। Thank you, dears. Thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू मैम।